word from his lips, dear Father. Bless those who are unable to come, Lord. We like to pray for all those who are at their homes. Help them to make a church in their homes itself, dear Father, so that they can praise and honor thy name wherever they are. Thank you for all the blessings that you have given us till today. This prayer I ask in thy holy name. Amen. Happy Sabbath. Please turn with me, book of Deuteronomy, chapter 14, verse 22 and 23. व्यवस्था विवरण की किताब उसका 14, उसकी 22 और 23 लिखा है, You shall tithe all the yield of your seed that comes from the field year by year, and before the Lord your God in the place that he will choose to make his name dwell there, you shall eat the tithe of your grain, of your wine, and of your oil, and the firstborn of your herd and flock, that you may learn to fear the Lord your God always. हिंदी में है, बीज की सारी उपज में से जो प्रतिवर्ष खेत में उपजाए उसका दशमांश अवश्य अलग करके रखना, और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले, उसमें अपने अन्य और नए दाखमधु और ताकते का तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नियत मानना सीखें। परमेश्वर इस आयत के पढ़े जाने पर आशीष दे। I request the deacon to come forward and collect today's tithe and offering. While the offering is being collected, we have a special number by Peter and Will.
अंधेरी रातों में जलाए रोशनी आओ मिलकर बनाए जिंदगी अंधेरी रातों में जलाए रोशनी आओ मिलकर बनाए जिंदगी अंधेरी रातों में जलाए रोशनी आओ मिलकर बनाए जिंदगी अंधेरी रातों में जलाए रोशनी है ये मेरी ही दुआ सलामत रखना भारत को दुआ है ये दुआ है ये हम पीटर, सिद्धांत और एडिसन का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे गीत के लिए। अब अगर किसी के पास कोई खास चंदा है, बर्थडे ऑफरिंग या टाइप है तो वो आगे आ सकते हैं। Let us all rise. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Let's pray. Our kind, loving Heavenly Father, our Creator, our Protector, we once again bow our heads before Thee and thank Thee for this beautiful Sabbath morning that You have given us, that we could once again can gather here in Thy house and can worship Thee. Father, we thank Thee that You have protected us from in the last week from all harm and danger, especially our parents, our children, our families, our friends, from this COVID-19 threat. Father, we thank for each and every blessing that You have poured on us. Father, we especially pray for all our church members who are here or at home. Bless them. If someone is sick, heal him. Father, if someone needs, give him. We ask all the blessings for our church members and our church members' families. Father, we especially pray for our church pastor as he is going to share that from the word of God. Be with him that whatever come out from his mouth is from Thy side. And also help us that we can understand and get prepared for Thy coming. Father, we especially pray for this offering and tithe. Bless each and every member who has contributed. Father, bless this offering and multiply it so that it can be used for Thy purpose. And many more people can know about Thy kingdom and get prepared for Thy second coming.
We ask these few blessings and mercies in Jesus' precious name. If we have, I think we have 4 children in our church today. I'll request all of them to please come forward and sit on the front bench. Okay, before I tell you the story today, we have 2 children whose birthday is there today, Joel and Noel. Okay, we'll pray for them later on. The story that I have for you today, आज की जो story है, बहुत बार हमने सुनी है और बाइबल में से है. Okay, the story is about Naaman. किसने अपने नाम सुना है नामान का? Naaman. Okay, we didn't hear, so we will hear today. हम उसके बारे में सुनेंगे. So Naaman was a commander, एक आर्मी कमांडर था. हमने देखा ना आर्मी के लोग जब हम कैंप जाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं. We have seen, yes they do, they have guns, है ना, they are strong. And Naaman was the army commander, वो chief था सबका. And he was strong and a good healthy man. But एक problem थी. There was one problem in his life, very teeny tiny problem, that he had लेप्रेसी. उसको क्या था? उसको कोढ़ था, उसको लेप्रेसी एक डिजीज थी जिसमें उसकी स्किन वाइट हो गई थी. He must have tried many doctors, बहुत सारे डॉक्टर्स के पास गया होगा इधर उधर, बट उसको कहीं से इलाज नहीं हो रहा था उसका. He was very tired and he was very sad because he was not able to cure himself. उसको कहीं से भी आराम नहीं मिल रहा था. तो नामान की जो वाइफ थी उसकी एक मेड सर्वेंट थी, छोटी लड़की एक मेड सर्वेंट थी. ओके, वो एक कैप्टिव थी, जैसे हमने आज लेसन स्टडी में पढ़ा. एंड वी हर्ड इन द फ्यूचर टॉक, कैप्टिव एक छोटी लड़की उसके लिए काम करती थी. हु वाज अ बिलीवर इन जीसस, वो जीसस में विश्वास करती थी. तो शी वेंट टू हर मिस्ट्रेस, उसने नामान की वाइफ से जाके बोला कि इफ ओनली माय मास्टर कुड गो टू अ प्रॉफिट इन समारिया, अगर वो एक प्रॉफिट जो कि समारिया में रहते हैं उसके पास जाएं तो मेरे मास्टर ठीक हो सकते हैं. सो क्विकली द वाइफ वेंट एंड टोल्ड नामान को बताया कि आप यहाँ जाइए जैसे कि उस लड़की ने बताया है. एंड नामान he quickly packed so many gifts. When you know that somebody is going to give you something, it's going to change your life, you would want to give them so many gifts. So नामान ने गोल्ड सिल्वर सब पैक कर लिया और अपने चैरियट्स पे अपने सर्वेंट्स को लेके वो चले गए. वो कहाँ गए, किसके पास गए? प्रॉफिट एलाइजा के पास. He went to prophet Elijah, okay, and he went and stood outside his door and maybe he knocked his door. Okay, तो कौन आया दरवाजा को खोलने? Gehazi, his servant, Elijah's servant. So he came and he told that I am here to meet your prophet. I am here to meet your prophet. But what did Elijah do? He said कि जाके नामान को बताओ कि आप जाके जॉर्डन नदी में 7 times क्या करो? हमने गाना सुना है ना, डुबकी लगाई. क्या करो आप? 7 times डुबकी लगाओ. How do you go inside? Okay? उसने बोला you have to go and dip yourself in the water 7 times. And Naaman was his leader. I will tell you, he was a leader. He was a strong man. तो उसको बहुत गुस्सा आया. उसने क्या बोला कि मैं तो प्रॉफिट को मिलने आया था, वो खुद तो बाहर नहीं आए, अपने सर्वेंट को भेज दिया. और क्या बोला कि जॉर्डन नदी में जाके 7 बार डुबकी लगाओ. राइट, गुड एडू, और डुबकी लगाओ. बट ही सेड आई विल नॉट गो. क्यों? जहां मैं रहता हूं वहां पे भी तो कितने सारे रिवर्स हैं. अगर सिर्फ मुझको पानी में स्विमिंग या डुबकी लगानी होती तो मैं पानी लगा लेता. सो ही गॉट वेरी एंग्री एंड ही सेड हम वहां से चले जाएंगे, हम वापस चले जाएंगे. ओके, बट वन ऑफ द सर्वेंट्स केम. एक नामान का एक सर्वेंट आया और उसके पास उसने बोला
कि मास्टर अगर प्रॉफिट आपको कोई बड़ा काम करने को बोलते तो आप क्या वो नहीं करते? अगर आपको वो बोलते कि 10,000 लोगों को खाना दो या मेरे को इतने सारे पैसे दे दो, तो क्या आप वो नहीं करते? करते ना। तो अगर उसने ये छोटी सी बात बोली है तो आप क्यों नहीं करते? Why don't you try it? So Naaman listened to his servant and he went to the river Jordan. और उसने वहां जाके 7 बार डुबकी लगाई। फर्स्ट टाइम when he dipped himself, क्या हुआ? ठीक हो गया? नहीं। सेकेंड टाइम नो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मे बी वो गुस्सा भी हो रहा होगा कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। फर्स्ट टाइम nothing happened, second time nothing happened, but when the 7th time he came out, his skin was as new as a baby. The Bible says his skin was as new as a baby. जैसे babies की skin होती है वैसे ही soft and new his skin was. We will read the story only till there. आज ये story से हम क्या सीखते हैं? Firstly and foremost, we learn that no matter what your age is, चाहे हम छोटे हो या हम बड़े हो, okay, it does not matter. अगर you want to share the word of God, you have to do it from any age that you want. वो छोटी सी लड़की, उसने सिर्फ अपने मास्टर एंड मिस्ट्रेस को जाके बोला अगर आप उस प्रॉफिट के पास जाओगे तो शायद आप ठीक हो जाओ. You will. She believed and she made others believe. So we have to share the word of God in whatever we do. Will we remember that? Will we remember this? कि हम जो भी करते हैं या हम जो भी बोलते हैं, we have to be sharing the word of God in everything we do. Okay, thank you. Members of the church, it's my great privilege to stand before you and share the word of God. आज मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है और खुशी की बात है कि आपके सामने खड़ा होकर परमेश्वर के वचन को आपके साथ साझा कर सकता हूँ. Before we meditate upon the word of God, इससे पहले कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, I want to thank Jump Group, Peter and his group for wonderful song. और मैं इन नौजवानों का, पीटर का, उनके तमाम साथियों का बहुत ही अद्भुत और एक मधुर संगीत के लिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ. I want to thank Sister Monica for wonderful story. आज सिस्टर मोनिका के लिए धन्यवाद करना चाहते हैं. बच्चों के लिए बहुत ही अति सुंदर कहानी जो उन्होंने सुनाई. God bless you and you serve the Lord. और जैसे आप परमेश्वर की सेवा करते हैं, प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करें. Today I want to talk to you about waiting is worth it. और मैं आज आपसे उस विषय में बात करूंगा कि इंतजार करना लाभदायक है. Bible states that God is right to wait on God. और परमेश्वर के वचन में ये बात को हम पाते हैं कि परमेश्वर के उस समय के लिए इंतजार करना. It's right to wait on God. और ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहकर उसका इंतजार करना. We spend lot of time in waiting. और हम बहुत सारा समय जो है इंतजार में गुजार देते हैं. Waiting in life, और जिंदगी का इंतजार करते हैं, waiting for the good news, और अच्छी खबर के लिए इंतजार करते हैं, waiting for the response, और दूसरे का जो उत्तर लेने के लिए हम इंतजार करते हैं, waiting for the promotion, और हम उनकी के लिए इंतजार करते हैं, waiting for the next season, और हम अगले ऋतु के आने के लिए इंतजार करते हैं, waiting for the healing, और हम चंगाई के लिए इंतजार करते हैं, waiting for the financial breakthrough, और हम ये इंतजार करते हैं कि कब हमारी आर्थिक जो स्थिति है वो सुधार हो, waiting for the freedom, और हम इंतजार करते हैं कि कब हमें आजादी मिले, waiting for the justice, और हम इंतजार करते हैं कब हमें न्याय मिले, waiting for the change, और हम इंतजार करते हैं कब हमारे जीवन में बदलाव आए, waiting for the fulfillment of the dreams. और हम ये
इंतजार करते रहते हैं कि हमारे सपने कब पूरे होंगे। Sometimes waiting can be extremely difficult और कभी कभार हमारा इंतजार करना बहुत मुश्किल हो सकता है and painful process. और हो सकता है कि जिससे हम उस इंतजार में गुजरना हमारे लिए बहुत ही दुखित हो। Since March this year, और हम देखते हैं कि इस साल मार्च से लेकर we are waiting to get rid of the coronavirus. और हम ये इंतजार कर रहे हैं कि हम इस कोरोना वायरस से मुक्त हो जाएं। But the cases are increasing day by day. परंतु ये बीमारी दिन पर बढ़ती ही जा रही है। But we believe, परंतु हम ये विश्वास करते हैं we believe as a believer, और एज हम जिस तरह से हम विश्वासी हैं, हम विश्वास करते हैं one day our loving Lord will eliminate it from the roots. और हम जानते हैं कि हमारा प्रेमदायक परमेश्वर एक दिन इस महामारी को निकाल देगा, दूर फेंक देगा। We know that our God is working in our waiting. और हम ये जानते हैं कि उस इंतजार में हमारा परमेश्वर हमारे लिए काम कर रहा है। We might not see any change और हम हो सकता है कोई बदलाव ना देख पाए in this time of waiting, और हो सकता है इस इंतजार में हमें कोई बदलाव ना दिखाई दे, particularly through the time of difficulty और उसी वास्तविक समय में जो हमारे लिए एक मुश्किल समय है and period of the personal growth. और हो सकता है कि वो ऐसे समय में जब हम अपनी व्यक्तिगत उन्नति देख रहे हैं। But there is a plan and purpose in all it. और हम देखते हैं कि इसमें परमेश्वर की योजना और उसका कोई उद्देश्य है। Suddenly God can change the things और एक चंद से परमेश्वर बातों को बदल सकता है and it can be a refining time. और ये हो सकता है कि हमारे साफ होने का, साफ सुथरे होने का समय हो। So let us encourage those are waiting. और आइए जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनको हम उत्साहित करें। Let us encourage those are suffering. आइए जो इसमें से जूझ रहे हैं उनको हम उत्साहित करें। There are many examples in the Bible और बहुत सारे उदाहरण हैं पवित्र शास्त्र में where waiting turned to worth it. और कहते हैं कि जहां पर इंतजार करना वो लाभदायक हो गया। Noah waited 120 years. और नूह ने 120 साल इंतजार किया Abraham waited 20 years. और अब्राहम ने 20 साल इंतजार किया Jacob waited 20 years. और याकूब ने जो है 20 साल इंतजार किया Joseph waited 13 years in the imprisonment. और जोसेफ ने 13 साल जो बंदीगृह में इंतजार किया। David waited 12 years to get the throne. और कहते हैं कि दाऊद ने 12 साल उस राजा सियासत को पाने के लिए इंतजार किया। Jesus waited 30 years for his ministry. और यीशु ने 30 साल इंतजार किया ताकि वो अपनी सेवा को शुरू कर सके। I want to share only 5 people's experience while waiting. और कहते हैं कि आज मैं आपके सामने 5 लोगों का अनुभव आपके साथ बांटूंगा। Number 1, Abraham. पहला इब्राहिम की बात करते हैं Waiting for a promise to be fulfilled. और एक ऐसी बात है जिसको पूरा होने के लिए इंतजार कर रहे थे। Book of Hebrews chapter 6 verse 15 says, इब्रानियों उसका 6 अध्याय उसकी 6 अपने अगर आप पढ़ते हैं it says like this, और यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है that Abraham waited patiently and he received what God had promised. और उसने बड़े ही सहनशीलता के साथ इंतजार किया और जो उसने इंतजार किया था परमेश्वर ने उसे दे दिया। Abraham was promised a son through his wife Sarah. और परमेश्वर ने कहा था कि तेरी पत्नी के द्वारा तुझे मैं पुत्र दूंगा। Despite her old age, और बिरसत की उसकी उम्र क्या जो उसकी बढ़ती उम्र के बावजूद भी the period of waiting lasts for 25 years. और जो उसका इंतजार का समय था वो 25 साल था। After 25 years, Sarah gave birth to Isaac. और 25 साल के बाद सारा ने एक पुत्र को जन्म दिया And Lord did to Sarah as he had promised. और उसने अपनी वाचा को पूरा किया जिसे तरह से सारा के साथ ये वाचा थी। Abraham's faith was credited to him as righteousness. और जो उसका विश्वास उसके प्रति उसकी रास्तबाजी गिना गया। He trusted in the Lord to keep the promise that his offspring would be numerous like the stars in the sky. उसने ये विश्वास किया कि परमेश्वर ने उसकी वाचा से उसे ये वादा किया है कि उसकी संतान उस तारों की और रेत के कण के And मानो sand on the seashore. और जैसे कि एक कण उस समुद्र की तट पर होते हैं It reminds us that
ये हमें ये बात की याद दिलाता है It's never too late for God and His promise. और हमें ये याद दिलाता है कि परमेश्वर के लिए कभी वो देरी नहीं है जिस तरह के वो हमसे वाचा करता His है promise do not expire. और उसकी जो वाचा है कभी समाप्त नहीं होती। Secondly, I want to talk about the Joseph. और दूसरी बात मैं यूसुफ के बारे में बात करना चाहता Waiting हूँ। in the prison for a purpose. और जो है वो उस बंदीगृह में एक उद्देश्य के लिए इंतजार कर रहा है। Book of Genesis chapter 50 verse 20 says, और उत्पत्ति की किताब उसका 50 अध्याय उसकी 15 में पढ़ते हैं। You intended to harm me. You intended to harm me. और कहते हैं कि वो तो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, But God intended for good to accomplish what is now being done. और कहते हैं कि परमेश्वर उस अपने उद्देश्य को पूरा करता है वो जो उसमें चाहता है, Saving of many lives. ताकि उसके द्वारा से बहुत सारी जानें बचाई जा सके। Joseph was his father's favorite son, और जो यूसुफ था वो अपने पिता का बहुत चहेता पुत्र था, which caused his brother to hate him. और इसके कारण उसके भाई उससे नफरत करने लगे, He also had the dream which showed him ruling over his family. क्योंकि उसे ये सपन दिखाया गया परमेश्वर ने कि वो अपने भाइयों पर शासन करेगा, They wanted to kill him, इसलिए वो उसे मार देना चाहते थे। but instead of killing him, और इससे कि वो उसे मारते they sold him into the slavery. और उन्होंने उसको जो है वो बेच दिया उसको गुलाम होने के लिए। After being sold him to slavery by his brothers, और अपने भाइयों से के जरिए से वो गुलामी के लिए बेच दिया गया, then he thrown into the prison for a crime which he did not commit. और वो उसे बंदीगृह में डाल दिया उस गुनाह के लिए जो उसने नहीं किया था। But Joseph made use of every opportunity. और Yeah. यूसुफ ने हर एक अवसर के लिए मौके के लिए उसको इस्तेमाल किया, That came his way. और वो उसका रास्ता बन गया। He interpreted the dream of fellow prisoners. और उसने जो है जो प्रिजनर वहां थे उनके सपनों को उजागर किया, Including one of who served the cupbearer to the Pharaoh. और जो फैरो का जो सेवक था जो उसके लिए तमाम भोजन मुहैया करता था। The interpretation Joseph made of his dream was that the cupbearer, और कप जो बैरियर था जो उसका खाना देने वाला शख्स था, उसका भी उसने सपन को जो है बता दिया, would be released from the prison. और उसने बताया कि इससे वो उस बंदीगृह से छुड़ा दिया जाए। Joseph asked him to remember him and show kindness by mentioning his name to the Pharaoh. और उसने यूसुफ ने कहा कि वो उसे दया दिखाए और राजे से उसकी याचना करे कि उसको यहाँ से छोड़ दिया जाए। However, the cupbearer forgot about Joseph. और परंतु हम जानते हैं कि वो जो खनसामा था जो खाना राजे को देता था उस बात को भूल गया। After 2 years passed, 2 साल बीत गए, Pharaoh had dream. और उस फैरो राजा को एक स्वप्न आया, There was no one to interpret that dream. और उसका स्वप्न को बताने वाला कोई नहीं था। Then cupbearer remembered the Joseph. और जो उसका खनसामा था जो उसे खाना परोसता था वो उसके पास आया, And he was called. और इसलिए उसके द्वारा उसने राजे को कहा कि यूसुफ जो है वो बता सकता, उसको बुलाया गया। Interpreted the dreams of the Pharaoh. और कहते हैं कि फैरो राजा के उस स्वप्न का मतलब यूसुफ ने बता दिया। Eventually, Pharaoh made Joseph second in the command of. और इसलिए फैरो ने जो था दूसरे दर्जे पर जो है हुक्म के लिए उसको रख लिया। From prison to the palace. और कहते हैं कि उस बंदीगृह से वो समर्थी इंसान बन गया। Joseph waiting in the prison, और यूसुफ जब उस बंदीगृह में इंतजार कर he रहा था trusted in the God, और उसने परमेश्वर पर अपना भरोसा रखा, and Lord blessed him, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी, and he saves many lives. और उसने बहुत सारी जिंदगियों को बचाया। Third, I want to talk about David. और तीसरी बात जो है वो मैं दाऊद के बारे में बात करना चाहता हूँ। Book of Psalm chapter 41 verse 1 says, और कहते हैं कि भजन संहिता का 41 की एक आयत में लिखा है, I waited patiently for the Lord. और कहता है कि मैंने बड़ी सहज और शीलता के साथ परमेश्वर का इंतजार He किया, turned to me and he heard my cry. और कहते हैं कि मैंने उससे अपनी बेनती की और उसने मेरी बेनती को सुन लिया। David waiting to be the king at appointed time. और जो दाऊद था वो राजी समय पर राजा बना, Saul was made the first king of Israel. और जो साउल था वो पहला राजा इस्राएल का घोषित किया गया। However, he rebelled against the God
और कहते हैं कि साउल ने किसी न किसी परमेश्वर के विरुद्ध खड़ा हो गया and God rejected him as और king. इसलिए परमेश्वर ने उसे निकाल दिया। At that time, God spoke through the prophet Samuel, और उस समय नबी सैमुएल के द्वारा से परमेश्वर ने बातचीत की and it was revealed to Samuel और इसलिए सैमुएल को परमेश्वर ने ये बताया that God appointed king as a David. और परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए चुना है, But David was not made king for some time. परंतु कुछ समय के लिए दाऊद को राजा नहीं बनाया गया। Saul became jealous of him. आज जो साउल था वो इस वजह से दाऊद से जलिस और उससे नफरत करने लगा And so set out to destroy him. और इसलिए उसने धार लिया कि मैं उसे दाऊद को बर्बाद कर दूं। Despite being relentlessly pursued by Saul, और कहते हैं कि देखते हैं कि दाऊद जो है उसका साउल ने बहुत देर तक पीछा किया, David was faithful to God. परंतु दाऊद जो था वो अपने परमेश्वर के प्रति वफादार था। David had an opportunity to kill Saul. और दाऊद के पास बहुत सारी ऐसी समय था जबकि वो साउल को मार सकता था। When he was unaware that David was there, और जब वो ये नहीं जानता था कि दाऊद वहां है, however, David honored Saul as God's appointed king. और दाऊद जो था वो साउल को परमेश्वर का चुना हुआ भक्त मानता था And spared his life. और इसलिए उसको मारा नहीं, छोड़ दिया। After encounter, और इसके वो वार्तालाप जब वो कार्य होने के बाद Saul made another attempt to kill David. और साउल ने एक और बार कोशिश की ताकि वो दाऊद को मार सके। And David had the opportunity to kill him again. और दाऊद के पास उस समय भी समय था ताकि मौका था कि उसे मार दे, But once again he spared his life. फिर उसने जो है साउल को छोड़ दिया और उसकी जिंदगी को बख्श दिया। David was ascended to the throne in the appointed time. और कहते हैं कि दाऊद को निर्धारित समय पर वो राजा घोषित किया गया। But he had to overcome many obstacles before the promise fulfilled. और इससे पहले कि उसको वो परमेश्वर की वाचा पूरी होए बहुत सारी मुश्किलों से तकलीफों से उसे गुजरना पड़ा। God granted him lot of success, और परमेश्वर ने बहुत सारी कामयाबी से बख्शी, lot of favor बहुत सारी उसके साथ अपने बातों को बनाए रखा with his people when he was king. और उनके लोगों के साथ भी जब वो राजा था। Bible says का वचन ये कहता है there's time for everything और हर एक कार्य के लिए काम है and every matter under the heaven. और कहते हैं कि हर एक चीज के लिए समय है और उस स्वर्ग के नीचे परमेश्वर हर एक समय के लिए को निर्धारण करता है। Waiting can be short or long for season. और कहते हैं कि कुछ समय के लिए जो इंतजार करना छोटा या लंबा हो सकता है, But God remains King of Kings परंतु हमारा परमेश्वर राजों का राजा ही रहता है and Lord of Lords. और वो प्रभु का प्रभु रहता है। I want to talk to you, fourthly, the woman who had the issue of blood. और कहते हैं कि मैं चौथी बात उस औरत के बारे में करना चाहता हूं जिसको 12 साल लहू चलने की बीमारी। In book of Mark, और मरकस की किताब में chapter 5, verse 25 onward, और कहते हैं कि 5 ऐसे लेके 25 आयत से आप शुरू करें। it says here, यहाँ पर लिखा है and a certain woman और कहते हैं कि एक औरत थी which had an issue of blood जो को लहू 12 साल से लहू चलने की बीमारी थी for 12 years. और 12 साल से लहू चलने की बीमारी। Verse 26 says, और 26 आयत में लिखते हैं and had suffered many things of many physicians. और कहते हैं कि उसने बहुत सारे डॉक्टर से इलाज कराया और थक गई थी इलाज कराकर, But spent all that he had, परंतु जो कुछ उसके पास था उसने सब खर्च कर दिया and was nothing better, और कुछ भी उससे फायदा नहीं हुआ but rather grew worse. और उस निस्बत की उससे और ज्यादा वो बीमारी बढ़ गई। Verse 27 says, और 27 आयत में इस तरह से लिखा है, when she had heard of Jesus, पर जब उसने परंतु यीशु के बारे में सुना, came in the press behind और उसने पीछे से चुपके से आई and touched his garment. और यीशु के पल्ले को छू लिया। Verse 28 says, और 28 आयत इस तरह से लिखता है, for she said, पर उसने अपने आप से कहा, if I may touch but his clothes, अगर मैं उसके पल्ले को भी छू लूंगी I shall be whole. और मैं चंगी हो जाऊंगी। When she touched the hem of the Savior's garment, और जब वो प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता का जब उसने वो पल्ला छू लिया, at once she was healed. और उसी समय वो चंगी हो गई। If you wait and believe, अगर आप इंतजार
progressing, और आप जो है आगे बढ़ते जाएंगे God will reveal His power. और परमेश्वर अपनी समर्थ को आप पर प्रदर्शित करेगा। Fifthly, I want to talk to share with you और पांचवी बात जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ, the man who stuck at the pool. और वो शख्स जो कि वहीं पर उस पूल में फंस गया था। Book of John, और यूना की किताब में chapter 5, 5 आयत में verse 1 onward. और एक ऐसे अगर हम पढ़ते हैं, After this there was a feast of the Jews. और कहते हैं कि इसके बाद जो है वो यहूदी लोगों की जो पर्व था और उसका भोज था। And Jesus went up to the Jerusalem. और यीशु मसीह यरूशलेम तक गए। Now there is a Jerusalem by the sheep of gate a pool. और कहते हैं कि वहां पर एक कुंड है जिसे हम शीप गेट के नाम से Which जानते is हैं, called in Hebrew Bethesda, और जिसका नाम इब्रानी में कहा जाता है बेथसेदा। having 5 porches. और कहते हैं कि उस कुंड के 5 कोने हैं। In these lay a great multitude of the sick people, और उस कुंड के किनारे में बहुत सारे बीमार लोग बैठे हैं, blind, अंधे हैं, lame, लंगड़े हैं paralyzed, और अधरंग से मरे हैं, waiting for the moving of the water. और इंतजार कर रहे हैं कब वहां कुंड का जो पानी वो हिलाया जाए। Verse 4 says, और चौथी आयत में लिखते हैं, for an angel went at the certain time into the pool and stirred up the water. और स्वर्ग का फरिश्ता एक समय आता और उस कुंड के पानी को हिला देता। Then whoever stepped in first, और कहते हैं कि जो उसमें पहले कूद जाता after the stirring of the water, और उसके पानी के हिलाने के बाद was made well, और वो चंगा हो जाता। whatever disease he had. जो कुछ भी उसकी बीमारी थी वो चंगी हो जाती। Verse 5 says, 5वीं आयत में लिखता now है, a certain man was there who had infirmity 38 years. वहां पर एक ऐसा शख्स था जो 38 साल से बीमार था। When Jesus saw lying there, और जब यीशु ने उसे वहां पड़ा हुआ देखा, I knew that he already had been in that condition a long time. और वो जान चुका था यीशु कि ये बहुत समय पे इसी स्थिति में पड़ा हुआ है। He said to him, और तब उसने उससे कहा, do you want to be made well? क्या तुम चंगा होना चाहते हो? Verse 7 says, और 7वीं आयत में लिखा है, the sick man answered him, और जो बीमार शख्स था उसने उससे उत्तर दिया, sir, I have no one to put me into the pool. और उसने कहा, महोदय मुझे कोई भी जो है उस पानी में डालने के लिए कोई मेरे साथ When the नहीं। water is stirred up, जब भी पानी हिलाया जाता है and while I am coming, और जब मैं वहां तक बढ़ता हूँ, another steps और down before मेरे me. बढ़ने से पहले कोई और कूद जाता है। Jesus said to him, यीशु ने उससे कहा, rise, उठ, get up, खड़ा हो your bed and walk. और अपना बिस्तरा ले और चल फिर। Only Jesus can end up your waiting. और कहता है यीशु ही आपके इंतजार को खत्म कर सकता है। Only Jesus can overcome your infirmities. और यीशु ही आपको अपनी तमाम बुराइयों से उभार सकता है। In last, और आखिरी में benefits of the waiting of the God. और कहते हैं कि परमेश्वर के उस इंतजार में हैं। There are benefits as we wait on the God. और वो हमें लाभ होगा जब हम यीशु पर इंतजार करेंगे। Waiting on God renews our mind. और कहते हैं कि यीशु परमेश्वर पर इंतजार करना हमारे मनों को, हमारे ज़हन को, हमारे दिमाग को ताजा कर देगा। Waiting on God renews our spirit. और कहते हैं कि परमेश्वर पर निर्भर करना वो हमारी आत्माओं को नया कर देता है। Waiting on God make whole our body. और कहते हैं कि यीशु पर इंतजार करना वो हमारे जिस्मों को पूर्ण कर देता है। Book of Isaiah, यशायाह की किताब में लिखते हैं, chapter 40 verse 30 says, और कहते हैं कि 40 अध्याय के 30 आयत में लिखते हैं, God will renew our strength और परमेश्वर हमारी सम्मत को नया कर देगा as we wait in Him. जब हम उस पर इंतजार करेंगे। Human response to waiting और जब इंसान उसकी इंतजार करता है is often anger and doubt. और जब वो इंतजार करता रहता है तो वो संदेह करता है और गुस्सा करता है। However, our God is gracious. और फिर भी हमारा परमेश्वर अनुग्रही Our परमेश्वर है, God is merciful, वो हमारा दया करने वाला परमेश्वर है, understanding of our tendencies. और वो हमारी कमजोरियों को समझने वाला परमेश्वर As है। we wait in the Lord, और जब हम परमेश्वर में इंतजार करते we हैं have the opportunity to grow into closer. और हमें मौका मिलता है कि हम परमेश्वर के और नजदीक बढ़ सकें।
in the reflection of His Son Jesus और Christ. ताकि हम उसकी यीशु मसीह की जो उसकी सूरत है उसमें बढ़ते जाएं। Putting aside the stumbling block in our lives और जो हमारे जीवन में बाधाएं हैं उनको एक तरफ रखते हुए that hold us back. ताकि हम उसे पकड़े रहें। Book of Psalm, भजन संहिता की किताब chapter 33, और 33 आयत में लिखता है verse 20 और उसकी 20 आयत में to 22. और 22 आयत तक We were in the hope for the Lord. हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। He is our help and our shield. वो हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है In Him our heart rejoices. और हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होता है For we trust His holy name. क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। May your unfailing love और आपका जो आपका निकाम विश्वास बढ़ रहा है be with us और वो हमारे साथ हो even as we put our hope in You. और वो हमारे प्रभु साथ हो ताकि जिस तरह से हम अपना भरोसा उसमें बनाएं। Waiting on God can be build hope and anticipation. और यीशु पर भरोसा रखना वो हमारे विश्वास को और बना सकता है। We have hope during the waiting period. और उस इंतजार के समय में हम अपने उस आशा को कायम कर सकते हैं। The hope that God will use the waiting in Him season for good. और कहते हैं कि वो आशा जिसमें खुदावंद आने वाले समय में हमारे उस ईमान और विश्वास को और बढ़ा सकता है। Let's have faith in Him. और आइए हम उसका इंतजार करें। God bless you all. परमेश्वर आपको आशीष करे। That's my prayer. और यही मेरी दुआ है। Can we say amen to the sermon that we have heard? Can we say amen? Amen. I want to thank Pastor Sunil for a wonderful message of waiting and hope. We wait in the Lord. We are going to grow in the hope, the blessed hope of Jesus' name. यीशु ने जो हमें दिया है वो विश्वास, वो आशा कि मैं फिर दोबारा तुम्हें आ रहा हूँ और तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा उस राज्य में जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। That's the greatest hope that He has given to us. लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में हमें अगर यीशु को पाना है तो हमें उसमें इंतजार करना होगा। अगर जिंदगी की जरूरतों को पाना है तो इंतजार करना होगा और उस पर भरोसा रख के उस पर निर्भर रहना होगा और वो हमें अपने निर्धारित समय से हमारी सारी जरूरतों को अपने पिता की महिमा के अनुसार हमें देता रहेगा। परमेश्वर के इस वचन और आशीषों जो आज का वचन जो हमें मिला है, आज इसी वचन के in response to